basic Ubuntu Linux command inside we learn about session number 14. Session number 14 inside we learn about 6.11 counting line, word and characters in the file. उसके लिए जो कमांड का लिस्ट है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ WC, उसका फुल फॉर्म है वर्ड काउंट. कौन सा है? वर्ड काउंट. एंड देन WC माइनस L for line, WC space minus W for word, WC space minus C means character. And then we learn about file permission and change permission. Then उसके लिए कमांड है chmod. I hope so you are indicated chmod. ये है ना वो साइलेंट है, तो कमांड है chmod means permission change करने के लिए. Let us start for session number 14, but within a few minutes you revise all the command fast forward. You know very well about all the command also here. Counting line, word and character in a file using for WC. WC with extra we learn about 3 argument. Which command? WC is command used the counting number of line, words as well as character. Let us start first of all clear about what is a character. Character means what? Single letter. Example, your name in first letter. Example, Arjun name उसका जो फर्स्ट लेटर से है वो A है, तो उसको क्या कंसीडर किया जाता है? कैरेक्टर. I give you another example like global means G. That is means I already note down it 2 character. Same I give the best example. Gmail ID as well as password minimum 8 character required means Gmail password is minimum how many character? 8 means alphabet. Single alphabet means what? Single character. Here also apply WC's command can be used along with the 3 options. You know very well command syntax also here. First of all minus L for indicated lines, minus W that is indicate a word, and minus C that is indicate about characteristics means character. ये जो 3 options हैं उसका हम यहाँ पे यूज करने वाला है with WC command. तो I hope so you are clear about the WC command. Let us start for best example. Input means what? You can type it WC space minus L and then file name. Means when you see the output at the time you can see 4 number. Means introduction file inside how many lines available? 4 only. But your wish is find out the word. Then command is WC minus W. You can find out the word here, but your wish is character identifier, then you can type it WC space minus C. Clear? Next we can use the but your wish is get all the information together using WC command. It is possible. How you can type it? The WC space minus L for line number is 4, then WC minus L with minus W, that means you find out the word here, and WC space minus L space minus W space minus C means character. And both here is a introduction.txt. Introduction.txt means file name. I hope so this command is clear. Let us start for this practical and then we can perform the new points. You know very well how to create the file using for GUI. Right click, document, empty file. Empty file inside we can type is like ABC, file name, double click, we can enter the file inside like gedit,
I can write for name 1 space ABC. You can see here line number 2. I am currently presenting 2 lines in column 1. Again 2 space XYZ means line number 2. Here GUI inside line is available and column also available, right? आप देख रहे हो यहाँ पे कॉलम के इनसाइड ये सब पॉइंट्स अवेलेबल है। जिसे मैं सेव कर रहा हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने काम किया फाइल का GUI के थ्रू। बट आपकी वीज है सर इसके अंदर वर्ड कितने हैं, ओके, एज वेल एज इसके अंदर लाइन कितनी है, वो सब कुछ यहाँ पे है। देखो यहाँ पे मैं करंट प्रेजेंट जहाँ पे लाइन करना चाहता हूँ वो ठीक है, बट यहाँ पे मैं टोटल लाइन नंबर के साथ प्लेन टेक्स्ट के अंदर सब कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे व्यू ऑप्शन के अंदर भी अवेलेबल है। ओके, आपको यहाँ पे जो भी मार्क्स साइंटिफिक ऑप्शंस आपको चाहिए ये ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक्स, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइन कितनी है 3। आप लोग सर 3 कैसे, नेक्स्ट लाइन में मैंने एंटर किया ना 3। वर्ड कितने हैं 4, 1 वर्ड है, 2 ABC, सेकेंड वो थर्ड हुआ, XYZ 4 है। लाइन कैसे हुई, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, एंड एंटर किया मैंने इसके लिए वो थर्ड लाइन हुआ। इसके बाद स्पेस, विद स्पेस 12 कैरेक्टर, स्पेस काउंट है, विदाउट नो स्पेस 8 कैरेक्टर, काउंट इट 1 2 3 एंड 4 सेम तो 8 हुआ, राइट? बट आप काउंट करोगे स्पेस 1 2 एंड 2 एंटर करना है, जैसे यहाँ पे एंटर भी काउंट होता है, एंड बाइट यहाँ पे कैसी है। आई होप सो आपको ये GUI के थ्रू क्लियर हुआ, राइट है? तो ये सब मैं डिटेल्स इसके लिए आपको इन्फॉर्म करो, इसको हमको किसके थ्रू फायर करना है, कमांड के थ्रू, क्लियर इतना? बट जैसे एग्जांपल देना चाहता हूँ, ये लाइन काउंट के लिए कौन सा है -L, वर्ड के लिए -W, यहाँ पे स्पेस काउंट करके हमको क्लैरिफाई करना है -C। आई होप सो ये GUI के थ्रू कंसेप्ट क्लियर है। लेट अस स्टार्ट फॉर CLI। व्हाट इज द फुल फॉर्म CLI? अगेन आई कैन फॉरगेट इट। यस, क्या होगा, कमांड लाइन इंटरफेस। टर्मिनल स्टार्ट हो गया है। लेट अस स्टार्ट फॉर, सबसे फर्स्ट हम फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नेम रखता हूं मैं कैट ग्रेटर देन, फाइल नेम रखता हूं हार्दिक सर, और उसके इनसाइड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फर्स्ट कंप्यूटर, सेकेंड लाइन आप चेक कर लेना PC, थर्ड हार्डवेयर, फोर्थ वन स्पेस सॉफ्टवेयर। How many line available? Here count is not available, but you can check it. How many line available? 4. जिसे यहाँ पे कर्सर है इसके लिए 4 है, बट इसको मैं नेक्स्ट लाइन में एंटर कर दूंगा तो लाइन काउंट कितने होगी 5। मैं Ctrl+D कर देता हूँ, डायरेक्टली एग्जिट हो रहता हूँ। 1 टाइम मैंने Ctrl+D प्रेस कर रहूंगा, मैं एग्जिट हो गया। देखिए उसके साथ कंटिन्यू है, तो ये 4th लाइन के साथ हुआ। अभी WC स्पेस, मैं मेरी फाइल का नेम लिख देता हूं। देखिए कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना है आपको, किस सेंसिटिव है हार्दिक सर। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो 3 लाइन 8 नहीं समझ में आ रहा ना ये क्या एक्चुअली अवेलेबल है। इसके लिए आपको WC स्पेस -L, फाइल का नेम क्या है, यस, मेरे साथ थोड़ा रिपीट करना। तो लाइन यहाँ पे 3 दिख रही है, क्यों 3? आप लोग सर यहाँ तो 4 है ना, मैंने एंटर नहीं किया। जैसे एंटर करने के बाद ही वो काउंट करता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में इसके अंदर क्लैरिफाई करके दिखाऊं, बट मुझको यहाँ पे कैरेक्टर काउंट करना हो तो मेरे लिए जहाँ W है वहां पे क्या टाइप करना पड़ेगा, C कि वर्ड। चलिए वर्ड काउंट कर लेते तो सीक्वेंस रहेगी वर्ड, तो इसके अंदर वर्ड कितने 8। आप लोग सर कैसे 1 2 3 4 as well as ये नेम 1 2 3 एंड सॉफ्टवेयर।
क्लियर 8 है। तो मैं आपको इसके लिए प्रूफ के लिए दे रहा हूँ जिसे आपको काउंटिंग करके इसके बाद समझ में आएगा। कैरेक्टर टोटल कितने हैं 41। तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अभी जो 3 थे वो क्या थी, लाइन थी। 8 था वो क्या था, वर्ड था। और जो 41 था वो क्या था, कैरेक्टर। आप डायरेक्टली WC भी लिख के ये फाइल कर सकते हो, बट आपकी विशेष से प्रॉपर वे में चेक करना है तो WC स्पेस -L स्पेस -W स्पेस -C एंड फाइल नेम लिख सकते हो। तो आपको एट द टाइम सेम आंसर मिलेगा। ओके, बट आपकी विशेष सर मुझको ओनली फॉर ऑप्शन में -वर्ड एंड कैरेक्टर काउंट करना है। डोंट वरी, यू कैन फायर इट, दैट इज अ ऑप्शन। तो आपको इतना ही आंसर देखेगा। आई होप सो क्लियर है। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होना चाहिए और फाइल के अंदर कितने कंटेंट है जब टेस्टिंग पर्पस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ये सब इजीली आप फायर कर सकते हो। ओके, रिवाइज इट। WC करूंगा तो इसका आउटपुट ये, WC -L करूंगा तो 3 लाइन, WC -W करके फाइल नेम तो 8। सेम हियर आल्सो, हियर फुल आर्गुमेंट एज योर रिक्वायरमेंट। क्लियर? WC का यूज और काउंट करने के लिए ये बेनिफिशियल है, जिससे आपकी फाइल की लाइन, लेंथ, कैरेक्टर, स्पेस काउंट करना है कि नहीं करना है, दोनों काम कर सकते हैं। सेम फाइल को हम GUI के थ्रू भी चेक कर लेते हैं। जैसे मैं प्लेस में गया, सेम आंसर आ रहा है। कहाँ पे था? यस, हार्दिक सर राइट क्लिक करता हूँ, उसके अंदर डबल क्लिक करके चेक कर लेते हैं, जिससे आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट में चले गए, ओके, टूल्स में जाके डॉक्यूमेंट स्टैटिस्टिक, आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा हो 4। क्यों? यहाँ पे लाइन में हमने एंट्री कर दिया है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो चुकी है। क्लियर है इतना? थैंक यू। नेक्स्ट कमांड हम फायर करते हैं और उसके बारे में हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो आई होप सो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। बट अभी यहाँ पे जैसे मैं ls स्पेस -L करता हूँ, मेरे पास मोर देन 2 फाइल है। जैसे अबाउट गांधी जी नाम की एक फाइल है, सेकंड फाइल है इंट्रोडक्शन वाली, थर्ड है एड्रेस, फोर्थ बैकअप, सिटी एंड एक स्क्रिप्ट है जो ऑलरेडी नेक्स्ट सेशन मिस पार्ट के अंदर हमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर एंटर ls स्पेस -L तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है। अभी तक आपने इसका इंटू नहीं, -R -W अगेन -R डबल टाइम माइनस, एक्चुअली इसको बोलते हैं हाइफन साइन, अगेन माइनस। ये एक्चुअली है क्या? सब फाइल के अंदर ऐसा है, दिख रहा है आपको? ये है क्या एक्चुअली? उसके बारे में हम यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाले हैं और उसकी परमिशन चेंज करने वाले हैं। -R -W -R और X भी है, देखिए फोर्थ के अंदर। ये एक्चुअली है क्या? उसको बोला जाता है फाइल परमिशन। मैं उसके बारे में भी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लैरिफाई करूंगा, बट उसके लिए भी पहले थ्योरी क्लैरिफाई करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डाइवर्ट होते हैं। इट इज शो अस द ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी फाइल या फोल्डर बनाते हो उसका ऑनर होना चाहिए। मींस जैसे मैंने एक फाइल डिजाइन किया तो उसका ऑनर मैं हुआ। उसकी साइज इंपॉर्टेंट है, डेट एंड टाइम भी इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ हम चेक करते हैं ls स्पेस -L कमांड से। कौन सा कमांड है? ls स्पेस -L। नहीं क्लैरिफाई है? ओके, चलिए लेट स्टार्ट फॉर प्रैक्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। मैं ls स्पेस -L करता हूँ, आप देख लेना डेट एंड टाइम दिखेगा। दिख रहा है आपको? ये अभी मेरे पास इतनी फाइल है। एक हार्दिक सर की नाम की फाइल बनी थी, इसमें -RW कौन सा कमांड फायर किया? ls स्पेस -L और ये आउटपुट आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ये रिमेनिंग ये सब है ना, वो फोल्डर है। बट मैं अभी आपको किसकी बात कर रहा हूँ? डायरेक्टरी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? फाइल, जो व्हाइट कलर की ये फाइल है, उसकी परमिशन देखिए आप। ओके, तो समझ में है इसे एक्चुअली है क्या? ये सब जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उसको बोलते हैं परमिशन। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे लेके ये परमिशन। ओके, नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं, इसको हम कर देते हैं क्लियर, ये चेक करने के लिए। और ये कमांड इसके लिए मैंने क्लैरिफाई करवाया।
यहाँ पे नेम के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेट एंड टाइम, जो ऑलरेडी हमने देखा भी था कौन से डेट एंड टाइम पे, बट उसके साथ हमको अभी क्लैरिफाई करना है अंडरस्टूड द फाइल परमिशन इन द डिटेल्स। कौन सी परमिशन है? तो डब्ल्यू का मीनिंग क्या मैंने बोला था आपको, आर का मीनिंग, ओके, यहाँ पे टाइम ऑनर, ग्रुप अवेलेबल है, ग्रुप एंड अदर्स, ओके, उसके बारे में भी हम क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट, फाइल परमिशन के इनसाइड सबसे पहले ग्रुप होता है, ओके, यूजर, ग्रुप एंड अदर। तो सबसे फर्स्ट हम जो यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे वो यूजर मीन्स व्हाट। जैसे मैं करंट यूजर हूँ, जैसे व्हाट्सएप के अंदर कैसा होता है यूजर, इसके बाद ग्रुप बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, इसके जैसा। माइनस आर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, रीड, डब्ल्यू का राइट और एक्स का मीनिंग होता है एग्जीक्यूट। तो देखो ई ऑप्शन ही है, एक्स है, तो रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट के हिसाब से फाइल परमिशन होती है। तो वहां पे जो भी हमने अभी प्रैक्टिकल में देखा था, एल स्पेस माइनस एल करके, तो उसका मीनिंग आपको अभी समझ में आया। जैसे रीड राइट परमिशन है, ओनली फॉर रीड परमिशन है, ये जो 3 है ना उसका ग्रुप डिवाइड किया है, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, क्लैरिफाई करते हैं और भी समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट, यूजर फर्स्ट आएगा, ग्रुप एंड अदर्स। फाइल परमिशन के अंदर ये टेबल समझ रहे हैं, जिसे नंबर 1 से स्टार्ट होता है टिल 10 तक। इन केस वाइवा या एग्जाम के इंसर्ट पूछा गया फाइल परमिशन के इंसर्ट डिजिट कितने हैं, अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेना तो आपको समझ में आने लगेगा। टोटल कितने डिजिट हैं, 10, राइट। जो फर्स्ट है ना वो माइनस साइन है, मीन्स हाइफन साइन बोला जाता है उसको। वो ऑब्जेक्ट का टाइप है, वो हिडन है, कौन सी कैटेगरी का है, नॉर्मल है। बट इसके बाद यहाँ पे परमिशन जो है वो ऑप्शन है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। वो किसके लिए होती है, ऑनर परमिशन है। जिसने ये फोल्डर बनाया उसकी 3 परमिशन यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। आर ये है वो सेकंड नंबर पे, डब्ल्यू है वो यहाँ पे, एक्स है वो 4th के ऊपर है, एग्जीक्यूट बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है 5 6 7 नंबर है, वो किसके लिए होता है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। वो एक्चुअली किसके लिए बनाया हुआ है, ग्रुप के लिए डिजाइन किया है। जब ग्रुप की परमिशन हो तो वो 5 नंबर से स्टार्ट होता है, 5 6 7 8 9 और 10 मींस रीड, राइट, एग्जीक्यूट। ये है अदर्स के लिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पार्टीशन है। ये नंबर सिस्टम के बारे में और भी क्लैरिफाई करूंगा, यहाँ से आपको क्लैरिफाई करना है। जैसे ऑनर का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 3 एंड 4। ग्रुप का नंबर 5 6 7 एंड अदर्स के लिए 8 9 एंड 10। टोटल कितने हैं, 10। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर इतना, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो देखिए सेम परमिशन आपको तीनों को सब कुछ परमिशन मिलता है। जैसे सेल्फ मींस कौन है, सेल्फ का मीनिंग ऑनर हुआ, ऑनर को भी 3 परमिशन है। कौन सी, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। ग्रुप को भी परमिशन है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। एंड पब्लिक मींस अदर, राइट, उसको भी 3 परमिशन है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट की। नेक्स्ट, फाइल परमिशन के अंदर जो भी फर्स्ट कॉलम होती है, ओके, राइट, उसको क्या बोला जाता है, माइनस, उसका हाइफन सिंबल है, वो क्या होता है, रिफर टू द फाइल, फाइल का रेफरेंस है। उसमें कैरेक्टर डी, रिफर इज ए डायरेक्टरी। समझाता हूँ अभी, जहाँ डी लिखा होता है, माइनस है तो फाइल है वो, ओके, डी लिखा है तो डायरेक्टरी है। अच्छा ऑब्जर्व करो, देख रहे हैं आपको डी डी डी, तो वो क्या हो गई, डायरेक्टरी हो गई। यहाँ पे माइनस है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, फाइल। तो ये क्या है, कलर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, एज वेल एज डी से भी आप क्लैरिफाई कर सकते हो, ओके। ये भी क्या है, डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मींस व्हाट, यू नो वेरी वेल, फोल्डर। क्लियर हो रहा है, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट्स। नेक्स्ट, कई टाइम प्रोसेस होती है तो उसके आगे क्या लगाया जाता है, प्री। तो ये हुआ प्रोसेस। जब माइनस है, फर्स्ट नंबर है, वो इंडिकेट ये करता है।
नेक्स्ट लाइन के अंदर जो कैरेक्टर है, राइट है, उसको एक्सेस परमिटेड बोला जाता है। उसके अंदर 3 होती है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। लिनक्स के इनसाइड टोटल हाउ मेनी परमिशन अवेलेबल? 3, राइट। इन फ्यूचर में मेरा यहाँ पे लिनक्स के परमिशन के अंदर भी बेस्ट वीडियो आपको बना के इन्फॉर्म करूंगा। रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन होती है। रीड करना मीन्स व्हाट, राइट करना मीन्स व्हाट, वो हम और भी क्लैरिफाई करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे और भी क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। द कैरेक्टर ऑफ आर इन फर्स्ट मीन्स आपको कौन सी परमिशन मिल गई है? रीड करने की। जैसे एग्जाम्पल पीडीएफ फाइल, पीडीएफ फाइल को कौन सी परमिशन होती है? ओनली फॉर रीड करने की परमिशन होती है। आप उसमें राइट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाहता हूँ? दूसरे के डीपी को आप व्यू कर सकते हो, रीड कर सकते हो, बट W that means write। एग्जाम्पल, मेरे वीडियो के इनसाइड बैक एंड साइड वीडियो के अंदर चेंजेस करना अलाउड नहीं है, बट आप वहां पे कमेंट में मीन्स मैंने राइट परमिशन दी है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लैरिफाई करने की ट्राई कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ रहा है। तो रीड, राइट परमिशन इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट वन एक्स के अंदर होता है एग्जीक्यूट करना। जैसे कई ऐसी फाइल की परमिशन है जिसमें आपको रन करने की अलाउड नहीं है, ये सब चेंजेस करना अलाउड नहीं है, राइट है। जैसे एग्जांपल मेरा डीपी चेंज नहीं कर सकते तो मैंने एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दिया, बट जैसे मैं वो प्रोफाइल का मींस मेरे खुद का अकाउंट है, यूजर नेम एंड पासवर्ड तो मुझको अलाउड है, राइट है। यहाँ पे हाइफन साइन है, वो पोजीशन, उसका मीनिंग क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लैरिफाई हो चुका है। तो पर्टिकुलर परमिशन अलाउ करके कुछ भी नहीं होगा तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसको कोई भी परमिशन अलाउड नहीं किया है। नेक्स्ट हम क्लैरिफाई करते हैं। अ फाइल परमिशन आल्सो गिव एज अ न्यूमेरिक रिप्रेजेंट। हम रीड, राइट, एग्जीक्यूट दिया ना, उसको न्यूमेरिक रिप्रेजेंट पे, न्यूमेरिक मींस व्हाट, यहाँ पे ऑक्टल है, तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्टल। उसका बेस कितना होता है? 8, और स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से, और एंडिंग 0 या 7 या 8, 7 से। टोटल कितना हुआ? 8। ओके, तो ये हुआ उसका फाइल परमिशन। इन केस वाइवा या इंटरव्यू में आपको पूछा गया फाइल परमिशन के अंदर नंबर सिस्टम होती है, वो कौन से कैटेगरी के नंबर सिस्टम है, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑक्टल। ओके, उसका बेस कितना है? 8, और ये सब हमने कैल के अंदर भी, ओके, BC स्पेस माइनस L के अंदर ये नंबर सिस्टम कन्वर्जेशन में रन किया था। तो अभी आपको समझ में ऑक्टल का यूज किसके लिए होता है? यस। एग्जांपल देते हैं। परमिशन मैंने दिया 644, ये है, आपको स्पेलिंग नहीं लिखना हो तो उसकी ऑप्शन में आपके पास डिजिट है। एग्जांपल दूं, HTML लैंग्वेज थोड़ा क्लियर है आपका? यस। उसके अंदर भी ऐसे बॉडी BG कलर इक्वल टू रेड, आपको रेड स्पेलिंग नहीं लिखना हो। क्या नहीं लिखना हो? रेड स्पेलिंग नहीं लिखना हो। तो उसका कलर कोड याद है आपको? मे भी आपने यूज किया हो। तो उसमें हैशटैग के आगे हम कलर कोड लगा देते हैं, FF। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ, तो कई टाइम आपका बेस क्लियर होगा ट्रेंड का, या इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल है, ओके, इसके बाद ही ये सब कुछ पॉइंट आपको और भी समझ में आए। जैसे FF0000 HTML कोड लिखोगे तो उसका मीनिंग भी रेड ही होता है। आप रेड स्पेलिंग लिखना चाहते हो तो भी ठीक है, या इसका कलर कोड, उसको बोला जाता है कलर कोड। सेम यहाँ पे आपको रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट नहीं लिखना हो, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट नहीं लिखना हो, तो उसके ऑप्शन में क्या है? यहाँ पे ऑक्टल नंबर सिस्टम है 644। तो 6 का मीनिंग क्या होता है? ऑनर। 4 का मीनिंग ग्रुप, एंड अगेन वापस 4 का मीनिंग क्या है? अदर्स। नहीं समझ में? ओके, चलो मैं ग्राफ के थ्रू क्लैरिफाई करूंगा तो आपको और भी पॉइंट समझ में आ लगेंगे। जैसे 644 जीरो को कंसीडर नहीं करना है, 644 का परमिशन है। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया है, जैसे CH मोड 6 का मीनिंग क्या है? यहाँ पे रीड। आप लोग सर कैसे हुआ ये नंबर कोड है। 4 मैंने जब नंबर आपको बोला था, कौन से नंबर सिस्टम? 4, यहाँ से नहीं, मैं उसका कलर करूँ, और प्लस राइट का 2 है, टोटल कितना हुआ? 6। ओके, ये एक्चुअली आपको ओनली फॉर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये एक्चुअली कलर कोड कैसे होता है। इसका प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म नहीं करना है, ओनली फॉर व्यू करना है, क्लैरिफाई करने के लिए। इन फ्यूचर ये आपको काम आ सकता है। इतना दैट्स में, ये तो वीडियो के अंदर है, इसके लिए मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ जिससे आपकी कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए।
4 का मीनिंग होता है रीड अगेन, जैसे पहले था, बट इसके रिमेनिंग 0 0 होगा रीड राइट एग्जीक्यूट के अंदर, तभी 4 होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन था, रीड के अंदर तो 4 था, राइट के अंदर कुछ नहीं, राइट के अंदर 2 और एग्जीक्यूट के अंदर 0 था। बट अदर्स के अंदर भी रीड के अंदर 4 नंबर है, 0 0 एग्जीक्यूटेड होगा 4, 6 4 4। ओके, ये टेबल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद और भी समझ में आने लगेगा एक्चुअली क्या है इसके अंदर। ओके, ऑक्टल नंबर सिस्टम देखिए, अभी ये परमिशन के थ्रू है। जैसे मैं 0 ऐड कर रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है, आईफन 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 3 टाइम। 3 क्यों, वो टेबल आपको मैंने नोट डाउन करने के लिए बोला ना, उसके अंदर समझ में आएगा। यूजर हो, ग्रुप हो या अदर हो, उसका मीनिंग क्या होता है, नो परमिशन असाइन। माइनस माइनस एक्स का मीनिंग क्या होता है, ऐसा कुछ आपको डिक्लेयर करना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1। क्या है, मैंने परमिशन दिया है, एग्जीक्यूट करने की परमिशन दी है। 1 नंबर क्या इंडिकेट करता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको 1 के थ्रू भी लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो। तो उसका मीनिंग क्या होता है, टोटल 7 नंबर सिस्टम है। ऑक्टल की नंबर सिस्टम कितनी होगी, 7। आप 0 लिखते हो तो कुछ नहीं होता है, 1 लिखते हो तो एग्जीक्यूट होता है। बट आपकी विश है मैं -w माइनस लिखना चाहता हूँ तो ये भी राइट है। अदरवाइज आपकी विषय में डायरेक्टली 2 लिख दूँ तो 2 लिखने का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ओनली फॉर कौन सी परमिशन दे रहे हैं हम, राइट परमिशन दे रहे हैं। पर आपकी विश है सर मुझको दोनों एक साथ देना है, राइट परमिशन भी अलोकेट करना है और एग्जीक्यूट भी देना है। उसके लिए आपको कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा, 3, और याद भी रखना पड़ेगा। इसके लिए 2 परमिशन है, राइट एज वेल एज एग्जीक्यूट। ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर दूसरी फाइल सिस्टम के बारे में क्लैरिफाई करते हैं हम। परमिशन इन टेक्स्ट फाइल, जैसे r माइनस माइनस, तो उसका नंबर कौन सा था, अभी याद आ रहा है आपको, 4। ओके, डोंट वरी, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं और भी क्लैरिफाई करूंगा। 4 का मीनिंग होता है रीड परमिशन। r माइनस माइनस एक्स, 2 साथ परमिशन है, रीड भी करना चाहिए और एग्जीक्यूट भी होना चाहिए। तो उसके लिए कौन सा कोड है, 5, रीड एज वेल एज एग्जीक्यूट। बट आपकी फीस है सर रीड एंड राइट परमिशन देना है, तो आपको कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा, 6। बट फीस डेंजरस है, सब कुछ आपको परमिशन देना है, रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों एक साथ देना है। तो उसके लिए नंबर कोड है 7, एवरीथिंग इज अलाउड। यहाँ पे ओनली फॉर हम नंबर सिस्टम एक्सप्लेन करने की ट्राई करें, इसके बाद हम और भी पॉइंट क्लैरिफाई करेंगे। नंबर सिस्टम की परमिशन के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर जो भी लिनक्स की सिस्टम है उसमें मेजर मैंने आपको इन्फॉर्म किया 3 परमिशन है। ओके, ये कौन सा है, यूजर, ये ग्रुप, एंड थर्ड वन अदर। ओके, ये अदर को भी कितनी परमिशन मिलती है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। और रीड का मीनिंग क्या होता है, अभी देखो आगे वाला टेबल देखोगे या रेफरेंस बुक के अंदर देखोगे तो आर का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, रीड करना, और 2 का मीनिंग क्या है, राइट करना। टेबल याद है आपको, नहीं है तो आप थोड़ा सा आगे देखिए, टेबल नोट डाउन करने के बाद चेक करोगे। और एक्स का मीनिंग होता है 0, तो 6 हुआ। तो ये परमिशन यूजर को रीड एंड राइट करने की दोनों की परमिशन है। बट ग्रुप हो तो वो ओनली फॉर रीड कर सकता है, क्योंकि इसको परमिशन का डिजिट मैंने रखा है 4। बट अदर्स है, उसको भी मैंने कौन सी परमिशन दी है, रीड करने की परमिशन दी है। ओके, इसके अलावा और एक भी परमिशन नहीं दी है मैंने। थोड़ा सा पॉइंट कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम डाइवर्ट होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, अभी अच्छी तरह समझना। एक मैंने फाइल बनाई थी, फाइल का मैंने नाम लिखा था WS-L। ओके, फाइल का नाम डेट एंड टाइम चेक करने के लिए, और फाइल का नाम क्या था, हार्दिक सर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये है फाइल परमिशन 1, ये माइनस है तो ये फाइल है, टी लिखा होता है तो डायरेक्ट टी, यहाँ पे 1 है, रूट मिस यूजर है, 42 लाइन के हिसाब से बाइट की साइज है, यहाँ पे डेट एंड टाइम भी है, और मेरे फाइल का नाम है। ओके, मैं क्या इसके लिए किसके लिए फायर किया, ls-l, तो यहाँ पे सब कुछ आ जाता है, बट मैंने स्पेसिफाई किया मुझको यही फाइल चाहिए, तो यहाँ पे अभी मैं इसकी परमिशन चेंज करना चाहता हूँ, तो कमांड है chmod स्पेस। अभी अच्छी तरह देखना,
मैं कौन सा कमांड फायर कर रहा हूँ 644, ये कलर कोड मीन्स जो परमिशन कोड है कलर कोड जैसे ही यहाँ पे काम करेगा वो ऑक्टल में। अभी मैं ls स्पेस -l करके जो कमांड था वो फायर करूंगा तो आप बोलोगे सर सेम है अभी, बट मैं यहाँ पे परमिशन अभी चेंज करने वाला हूँ। ये सबकी परमिशन में 0 कर देता हूँ, अच्छी तरह समझना। ls स्पेस -l करके देखता हूँ तो दिख रहा है आपको, ये परमिशन मैंने रिमूव कर दिया। अभी समझ में आया? ओके, उसको परमिशन मुझको अलोकेट करना है। तो आप देखोगे तो ये सब इतना डेप्थ में प्रैक्टिकल थ्योरी यहाँ पे अवेलेबल मैं यहाँ पे परफॉर्म करवा रहा हूँ। और ls करके आप चेक करोगे तो समझ में आएगा, सब परमिशन अलाउड हो गई। समझ में आ रहा है आपको? बट अगेन मुझको वापस इसकी फाइल की 0 करना है तो उसका मीनिंग क्या हुआ मालूम है? आप जब भी ग्राफिकली वो फाइल को देखोगे उसके ऊपर क्रॉस होगा, दिख रहा है आपको? ये फाइल ओपन करने की ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पे मना करेगा। क्यों? मैंने उसको फाइल को क्या कर दिया है, परमिशन रिमूव कर दिया है। बट वही फाइल को मैं जब परमिशन दे देता हूँ 7 से, राइट, और ls -l से मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे, और मैं ग्राफिकली चेक करना चाहता हूँ तो वही फाइल जो ऑलरेडी क्लोज थी उसको मैं अब इजीली ओपन कर सकता हूँ। मैं CLI एज वेल एज GUI दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट द हाउ टू चेंज द परमिशन। एंड जो परमिशन है यहाँ पे, जो फाइल एंड फाइल की फोल्डर की परमिशन है वो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ GUI, बट हमारे सिलेबस में, और मैं आपको जो कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहता हूँ वो ओनली फॉर CLI के थ्रू है। सबसे फर्स्ट फोकस किसके थ्रू करेंगे? CLI। मैं GUI का बेस बनाना चाहता हूँ जिससे कंसेप्ट और भी जो आप माउस का यूज करके जो कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ सेम यहाँ पर भी है। देख रहे हो यहाँ पे परमिशन है, दिख रहा है आपको? परमिशन इनसाइड ऑनर यूजर मींस ग्रुप एंड अदर, उसकी एक्सेस है। देखो रीड एंड राइट, ओके, रीड एंड राइट। मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ नन एंड नन। यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, रूट है। समझ में आ रहा है आपको? ये भी मैं ऑप्शंस दे सकता हूँ, बट ये हुआ GUI। बेटर ऑप्शंस है हमारे पास CLI। ओके, CLI का कमांड फायर करके इजीली हम ये परमिशन रिमूव और ये सब कुछ काम कर सकते हैं। तो आई होप सो ये ग्राफ्स है, ये ग्राफ एक बार ड्रॉ कर लेना नोट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में क्लैरिफाई करें। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पूरा परमिशन चेंज करेंगे, परमिशन अलोकेट करेंगे, और जो क्रॉस वाली फाइल था उसको भी ओपन करने की ट्रिक है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।